ذرا سوچئے کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے ایک اسکول کا انتخاب کرتی ہے، لیکن وہ اپنے بچے کو اسکول میں نہیں پڑھا پاتی کیونکہ اس بچے کے حق کے پیسے کسی آفیسر کی جیب میں رشوت کے طور پر چلے جاتے ہیں۔ ایک مریض اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن، لیکن اس ہاسپٹل کا اسٹاف تب تک حرکت میں نہیں آتا جب تک انہیں رشوت نہیں ملتی۔ ناظرین، یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے ہر اس شخص کی جو ہمارے ملک میں کسی نہ کسی طرح کی کرپشن کا شکار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف آج کا مسئلہ ہے یا ہماری آنے والی نسلیں بھی اس زہر کے بوجھ کو اٹھانے پر مجبور ہوں گی؟ پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا کہ جب آج ہمارا سسٹم ذہانت کی بجائے سفارش، ایمانداری کی بجائے پیسے اور ترقی کی بجائے ذاتی مفاد پر چل رہا ہے؟ آج ہم بات کریں گے کہ کیسے کرپشن صرف ایک مالی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذہنیت ہے جو ہر روز ہمارے ملک کی بنیادوں کو کمزور کر رہی ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان ان بچوں کو ہے جو ابھی اس دنیا کو سمجھنے لگے۔ اگر آپ بھی یہ سمجھنا چاہتے ہیں اس کرپشن کا اصل اثر کس کو ہو رہا ہے اور ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں، تو آج اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، کیونکہ یہ صرف ایک ڈسکشن نہیں، یہ ایک آواز ہے جو آپ کی سوچ کو بدل کر رکھ سکتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محسن ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ہاشمی ٹاکس پر۔ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کرپشن اصل میں ہوتی کیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے 2023 کے کرپشن پرسیپشن کے انڈیکس کے مطابق 180 ملکوں میں سے پاکستان کا 140واں نمبر۔ اب یہ رینکنگ ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ہمارا سسٹم کس حد تک بیکار اور کمزور ہو چکا ہے۔ مگر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ کرپشن ہوتی کہاں سے؟ کرپشن اس وقت پاکستان کے تقریباً ہر فیلڈ میں گھس چکی ہے، ہر جگہ پہ وہ اپنی جڑیں گاڑ چکی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں تو نہ صرف سکولز کا بجٹ کھایا جاتا ہے بلکہ وہاں پر بچوں کو ملنے والی مفت کتابوں کو بھی بلیک بیچ کر پبلک کا پیسہ ضبط کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہاسپٹل کے فنڈز جو لوگوں کی صحت کے لیے دیے جاتے ہیں وہ وہاں پر موجود آفیسرز کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح روڈز اور پلوں کے نام پر اتنی بڑی بڑی اماؤنٹس کھائی جاتی ہیں، لیکن نہ تو عوام کو اچھے روڈز ملتے ہیں اور نہ ہی کوئی اچھا انفراسٹرکچر۔ تو ناظرین، اب آپ خود بتائیے، جس سسٹم میں یہ حال ہو کہ ہر بندہ ہی صرف اپنے ذاتی فائدے کا سوچتا ہو، وہاں پر ایک عام انسان کی زندگی کے اوپر کیا اثر پڑے؟ تو ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے ہر سیکٹر میں ہونے والی کرپشن کے بارے میں بات کریں گے اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس کا حل بھی۔ تو آئیے ون بائی ون شروع کریں۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں ایجوکیشن سے۔ ناظرین، کبھی سوچا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم جو کسی بھی ملک کی ترقی کا سب سے پہلا ستون ہوتا ہے، وہ پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن کا شکار ہے۔ یونیسکو کے مطابق پاکستان میں ایجوکیشن سیکٹر پر جی ڈی پی کا صرف 2.2% خرچ ہوتا ہے، جو دنیا کے باقی ممالک کے مقابلے میں شرمناک حد تک کم ہے۔ اور اس میں بھی سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑا بہت بجٹ ایجوکیشن کے لیے الوکیٹ کیا جاتا ہے اس میں سے بھی 40% کرپشن کی نظر ہوتا ہے۔ اور اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اور وہ ہوتا ہے ایجوکیشن سسٹم کی کوالٹی، اور وہ کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ سکولز میں نہ تو فرنیچر ہوتا ہے اور نہ ہی پینے کا صاف پانی، اور نہ ہی لیبارٹریز اور لائبریریز جو کہ تعلیم کا بنیادی حصہ ہے۔ اور ٹیچرز کو نہ تو پراپر ٹریننگ ملتی ہے اور نہ ہی وقت پر تنخواہ۔ اس کی وجہ سے ٹیچرز ٹیچنگ پروفیشن کو چھوڑ کر دوسری جاب کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ سے کبھی بھی پوچھیں گے تو وہ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اپنے استاد کی طرح بننا ہے، میں نے ایک ٹیچر بننا ہے۔ وہ کبھی کسی ٹک ٹاکر کا نام لے گا، وہ کبھی کسی یوٹیوبر کا نام۔ اب سوال یہ ہے، اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اب اگر ناظرین ہم دیہاتوں کی طرف دیکھیں تو دیہاتوں کے ایجوکیشن سسٹم کا تو حال اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ دیہاتوں میں ہر گھر میں ہر دوسرا بچہ اسکول نہیں جاتا۔ اب آپ خود بتائیے کہ کیا اس کرپشن کا اثر صرف مالی طور پر ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، اس کا اثر پاکستان کے ہر گھر کے خوابوں پر ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال تقریباً 20 لاکھ بچے اسکول چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جو مستقبل میں ڈاکٹرز، سائنٹسٹ اور لیڈرز بن سکتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیے کہ کیا یہ کرپشن کا سب سے بڑا ظلم نہیں ہے؟ فرض کریں ایک بچہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ چاند پر پہنچے، لیکن وہ اپنا خواب اس لیے پورا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے حق کے پیسے کسی اور کی جیب میں چلے گئے۔ آخر کب تک ملک میں ان خوابوں کی لوٹ مچی رہے گی؟ آخر کب
इस मुल्क में करप्शन को रोका जाएगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर जो किसी भी मुल्क में लोगों की जिंदगियों को बचाने का जिम्मेदार होता है, पाकिस्तान में वो भी करप्शन का शिकार है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में सेहत के सेक्टर में हर साल अरबों रुपए का घपला होता है। और ये सिर्फ कोई डाटा नहीं है, बल्कि ये हमारी नस्लों की सेहत का एक कत्ल है। ये पैसा जो हॉस्पिटल्स और मेडिसिन पर खर्च होना चाहिए था, वो लोगों की जाती जेबों में चला। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेसिक मेडिसिन का बुरा हाल। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 70% अस्पतालों में बुनियादी दवाइयां भी नहीं। डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी की वजह से मरीजों की जिंदगियां खतरे में। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक 1300 मरीजों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर, जबकि WHO के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 1000 मरीजों के लिए एक डॉक्टर। और अगर हम देहातों की बात करें तो देहातों का हाल इससे भी बुरा है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड कैपेसिटी का यह हाल है कि एक एक बेड पर 2-2, 3-3 मरीज लिटाए जाते हैं और वहां पर इस्तेमाल होने वाली मशीनें या तो खराब है या फिर आउटडेटेड। जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का यह हाल होगा तो लोगों को मजबूर होकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करना पड़ेगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स पाकिस्तानी अवाम में ज्यादातर लोगों के लिए शहजादी का एक ख्वाब है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 70% से ज्यादा लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये सहूलियत का नहीं बल्कि ये इंसानियत का बहरान है, क्योंकि यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 5 लाख बच्चे उन बीमारियों की वजह से मौत का शिकार होते हैं जिनका इलाज किसी भी मुल्क में आसानी से मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान में उन बच्चों तक बुनियादी सेहत की सहूलियत भी नहीं। अब आप खुद बताइए कि एक बच्चा जो कल का लीडर था, एक इनोवेटर था या एक डॉक्टर बन सकता था, लेकिन वो सेहत की बुनियादी सहूलियत ना मिलने की वजह से मौत का शिकार हुआ, तो क्या ये सिर्फ एक फैमिली का नुकसान है? ये कोई करप्शन नहीं है, ये हमारी नस्ल के ख्वाबों और उनके मुस्तकबिल का कत्ल है। आखिर कब तक हमारे हेल्थ सेक्टर का ऐसे मजाक उड़ाया जाता रहेगा? आखिर कब तक एक गरीब अपनी जान बचाने के लिए ऐसे मोहताज रहेगा? क्या अब इस सिस्टम को बदलने का वक्त नहीं आ गया? तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इस करप्शन का हमारे मुल्क की इकोनॉमी और जॉब मार्केट पर क्या असर हो, क्योंकि करप्शन सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि ये किसी मुल्क की इकोनॉमी की बुनियाद को भी हिला देता है। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी मुल्क का इकोनॉमिक सिस्टम करप्शन के जाल में फंसा हो तो वहां पर तरक्की कैसे मुमकिन? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में नौजवान नस्ल में बेरोजगारी की शरह 8% है। और ये कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि हकीकत इससे ज्यादा डरावनी है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि हर बंदा अपनी बेरोजगारी रिपोर्ट नहीं करता। लेकिन सवाल ये है कि इस बेरोजगारी की वजह क्या है? तो जवाब है करप्शन। नाज़रीन, जॉब्स मेरिट पर मिलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में पैसे और सिफारिश की वजह से। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% से ज्यादा जो डिग्री होल्डर नौजवान हैं, उनका यह मानना है कि पाकिस्तान में करियर करप्शन और निपोटिज्म की वजह से खत्म हो चुका है। स्मॉल बिजनेसेस जो किसी भी इकोनॉमी की जान होते हैं, उन्हें पाकिस्तान में गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मिली। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और फंड्स की चोरी की वजह से 90% से ज्यादा स्टार्टअप्स अपने पहले 5 साल में बंद हो जाते। अब खुद सोचिए कि बिजनेसेस जो लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट कर सकते थे, वो करप्शन की वजह से खत्म हो गए। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत बनाती है, लेकिन पाकिस्तान में करप्शन की वजह से दूर भागती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा 20 करप्ट मुल्कों में शामिल है। तो इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में पैसा लगाने से डरते हैं। अब इसका असर क्या होता है? पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन का 64% है, वो नाउमीदी और बेरोजगारी का शिकार है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 20 लाख नौजवान जॉब मार्केट में एंटर होते हैं, लेकिन जॉब कितने को मिलती है? आटे में नमक के बराबर। एक टैलेंटेड ग्रेजुएट जो अपने ख्वाब पूरे करके मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत कर सकता है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, और इसकी वजह से कई लोग मजबूर होकर बाहर के मुल्क। अब बात करते हैं करप्शन के नफसियाती असरात क्या होते। तो नाज़रीन, जब एक बच्चा या एक नौजवान हर रोज ये देखता है कि उससे उसका हक छीना जा रहा है, तो वो इससे क्या सीखता? एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 70% से ज्यादा नौजवान ये कहते हैं कि उनका सिस्टम पर भरोसा नहीं। अब सवाल ये है कि इस लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से होता क्या है? डिप्रेशन और एंग्जाइटी का, जो नौजवान नस्ल को
کرائم اور इलीगल एक्टिविटीज की तरफ लेके जाता है और इससे उनका अपने मुल्क के ऊपर कॉन्फिडेंस कम होता है। अब यहाँ पर आप खुद बताइए कि जब एक नस्ल अपने मुल्क के सिस्टम पर अपना एतमाद खो बैठती है तो वो फिर किस तरह उस मुल्क का बेहतरीन हिस्सा बन सकती है। लेकिन नाज़रीन, अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? क्या हम करप्शन के इस गहरे कुएं में से निकलने में कामयाब हो सकते हैं? ये एक सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना होगा कि अगर हम अब भी कुछ नहीं करते तो फिर हमारा मुस्तकबिल कैसे संभलेगा? इसका पहला सोल्यूशन है स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। नाज़रीन, हर ऑफिसर का ऑडिट होना चाहिए, हर ट्रांजैक्शन की ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक ऐसा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम नहीं बना सकते कि जो हर शख्स को जवाबदेह बना सके, तब तक करप्शन रोकना मुमकिन नहीं है। अब बात करते हैं एजुकेशन रिफॉर्म्स। तो नाज़रीन, एजुकेशन का बजट डायरेक्टली स्कूल और उनके टीचर्स के अकाउंट्स में जाना चाहिए, ना कि किसी एक शख्स के अकाउंट। और उन टीचर्स और स्कूल के हेड्स का रेगुलर ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा तभी हम अपनी नौजवान नस्ल को एक बेहतर बनाएंगे। नेक्स्ट सोल्यूशन है मेरिट बेस्ड हायरिंग। हर सेक्टर में जॉब सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर होनी चाहिए। अगर हम अपनी नौजवान नस्ल को उनकी जहानत और उनके हुनर के हिसाब से जॉब देंगे तो इससे ना सिर्फ हमारे मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी, बल्कि हमारी नौजवान नस्ल को एक डायरेक्शन मिलेगी। नेक्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स। सिर्फ ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो करप्शन को रोके, बल्कि इसमें आवाम को भी अपना हक अदा करना चाहिए। हर शहरी को यह समझाना होगा कि वो कैसे करप्शन को रिपोर्ट कर सकते हैं और वो कैसे अपने इर्द गिर्द करप्शन को रोककर अपने सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक और सोल्यूशन हो सकता है कि अगर हम अपने मुल्क में बड़े नोटों को बंद कर दें, जैसे कि 5,000, फर्ज करते हैं कि अगर किसी शख्स ने किसी को 5 लाख रिश्वत दी, तो अगर वो 5,000 में वो रिश्वत देगा तो कितने नोट बनेंगे? सिर्फ 100। लेकिन अगर वो इतनी बड़ी अमाउंट 1000 की शक्ल में देगा तो उस वक्त कितने नोट बनेंगे? अब खुद बताइए कि अगर जितने नोट छोटे होंगे उतनी उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो इतनी बड़ी क्वांटिटी को ना तो रिश्वत में देना आसान है, ना ही उसे लेकर अपने पास रखना आसान है। तो इसलिए अगर बड़े नोटों को बंद कर दिया जाए या नोटों को वक्त के साथ चेंज करते रहें तो इससे भी हम करप्शन को रोक सकते हैं। तो सोचिए, अगर हम आज इन स्टेप्स को अपनाना शुरू कर दें, इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, तो क्या हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बना पाएंगे? आज वो वक्त है कि जब हम अपनी आवाज़ उठाएं। अगर आज हम आवाज़ उठाएं, अपने हक के लिए खड़े हो जाएं और अपनी तकदीर को अपने हाथ में, तो वो वक्त दूर नहीं है जब हम अपने मुल्क को उस मंजिल पर ले जाएंगे जहां पर करप्शन कितनी दूर है। क्योंकि दोस्तों, करप्शन आज का मसला नहीं है, ये कल का सवाल है। ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है जो इस वक्त एक उम्मीद के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि अगर आज हम खड़े ना हुए तो कल को हो सकता है कि हमारे अपने बच्चे इस सिस्टम का शिकार हों। अब वक्त है कि हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने हक के लिए आवाज़ उठाए और मिलकर इस सिस्टम को बदले, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम इस मुल्क में एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। तो क्या आप तैयार हैं इस मुल्क को बदलने के? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में दोबारा मुलाकात है। तब तक के लिए